Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to cover a poem written by Robert Browning. Name of the poem is The Bishop Orders His Tomb at St. Prague's Church. So without wasting any further time, let's start with it. So why is it important to know about the author is because we learn to analyze the text and illustrations in wherein we make connections between author's life, his or her work, and between the author's work and the reader's own life and work. Why is it important? Because हम ऑथर की राइटिंग से उसकी लाइफ की चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि क्यों उसने ये पोइट्री लिखी, या फिर हम अपनी लाइफ को ऑथर की लाइफ से कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हम अपने दिमाग में ऑथर की बायोग्राफी, उसका राइटिंग स्टाइल, उसका लिविंग स्टाइल, क्यों उसने सैड पोइट्री लिखी, क्यों उसने हैप्पी पोइट्री लिखी, क्यों उसने नेचर पोइट्री लिखी, अगर हम इसको अच्छे से पहले ऑथर की लाइफ स्टडी करेंगे तो हम उसका टेक्स्ट बेटर एनालाइज कर सकते हैं. Starting with the author, Robert Browning was born on 7th May 1882 and he died on 12th December 1889. He was best known for his dramatic monologues. His poems are known for his irony, characterization, dark humor, social commentary, historical settings, and challenging vocabulary and syntax. So now looking about the author, he was best known for his dramatic monologues. What is dramatic monologues? ये हम आगे पढ़ते हैं. But before that, his famous works included My Last Duchess, जो हमने अपने बैचलर्स में ज़रूर किया होगा, Propheria's Lover, The Ring and the Book, Men and Women, और भी बहुत सारी पोइट्रीज़ हैं. उसका फेमस राइटिंग स्टाइल, ऑल्दो वो बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के, बट ही वॉज कॉमनली नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. ही स्टार्टेड द कंसेप्ट, तो इसलिए वो उससे ज़्यादा जाना जाता है. ऑब्वियसली वी कैन नॉट फॉरगेट दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ विक्टोरियन पोएट. ही वॉज बॉर्न इन UK एंड ही डाइड इन Italy. अब हम आगे जानेंगे कि वाई ही वॉज बॉर्न इन UK एंड ही डाइड इन Italy. So moving on, he did his mastery in the dramatic monologues when he was in the university studying. His subject that he chose was dramatic monologues में mastery करना. He was known as a prolific Victorian writer. एक तो हम उनको Victorian writer भी बोलते हैं, दूसरा हम उनको dramatic monologues के लिए famous भी बोलते हैं. Victorian writer वो क्यों थे? We all know what is Victorian period, जहाँ पर Queen Victoria का reign था. So Queen Victoria's reign was from June 20, 1837 and until her death. जब तक वो मरी नहीं, उनका रूल विक्टोरियन एरा में चल रहा था. That was till 22nd January 1901. So the era was followed by the Georgian period and preceded the Edwardian period. Further, he explored the beauty of real world using artistic techniques in his poem Fra Lippo and Propheria's Lover. हम Fra Lippo and Propheria's Lover भी हमारी आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे. उनके जो मेन थीम्स, उनकी पोइट्री कुछ मेन थीम्स थे जिसके अराउंड रिवॉल्व करती थी. दैट वाज लॉस, लव, रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड मोरालिटी. हम रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड मोरालिटी को बहुत ज़्यादा उनकी पोइट्री में देखेंगे. एंड रिलीजन एंड सोसाइटी, ये दो थीम्स हैं जिनके ऊपर रॉबर्ट ब्राउनिंग्स की पोइट्री ज़्यादा रिवॉल्व करती थी. Till now we have studied that who was Robert Browning, which era he used to write his poetry in, when was he born, when he died, his writing styles, and we have also studied the main themes in which the poetry of Robert Browning used to revolve around. Now we will study about what exactly dramatic monologue is, and then we will cover the poem The Bishop Orders His Tomb at St. Prague's Church. So let's see. Now we'll see that what dramatic monologue is. The dramatic monologue is a way of exploring forbidden themes and problems of contemporary life. Now what contemporary life is? The era in which we are living. Say for example, हम अभी की बात करते हैं. जैसे अभी कोविड है, लॉकडाउन है, we see labor class struggling for food because they are paid on daily basis, right? तो वो जो कमाते हैं वो उससे रोटी खाते हैं.
तो जो राइटर्स उस टाइम पर से फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर वॉर्स थी, वॉर्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए, वॉर्स से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बनी या कुछ भी था, तो वो राइटर्स उन कंटेम्प्रेरी लाइफ के टाइम के थीम्स और प्रॉब्लम्स को रिलेट करके पोइट्री लिखते थे. दैट वाज ड्रामेटिक मोनोलॉग. इट इज़ अ डायलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर वेयर ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स. ऑल्सो दैट कैरेक्टर इज़ नॉट द वॉइस ऑफ द पोएट डायरेक्टली. जैसे मैंने पोइट्री लिखी बट वो लाइफ मेरी थी, वो सफ़रिंग्स मेरी थी, प्रॉब्लम्स मेरी थी, लेकिन वो कोई और कैरेक्टर बता रहा है. जैसे मैं अपने बारे में बोल रही हूँ लेकिन मैं किसी और कैरेक्टर को डिनोट करके उसके बारे में बता रही हूँ. So the poet uses a certain character to give a certain speech that I already told you. The bishop orders his tomb at St. Prague's church has dramatic irony to criticize the hypocrisy of materialism in religion. जहाँ पर हम hypocrisy of materialism, जैसे materialful life, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये चाहिए, जहाँ हम religion को directly criticize कर रहे थे. So this dramatic irony is used in the poetry of Robert Browning. After understanding what is dramatic monologue, now let's do the analysis of the poem. This is a poem written by Robert Browning. The poem is narrated by a fictional bishop on his deathbed. There are 125 lines in the poem, and this poem was published in 1845. So basically, this poem represents Bishop's worldliness and love towards materialism. उसको उसकी डेथ बेड पे जाने से पहले उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी. We will see that. Printed in 1845 in Hood's magazine and later that same year in Dramatic Romance and Lyric. So the bishop was on his deathbed and so orders his tomb. Bishop is filled with feeling of fear, regret and jealousy. वो अपनी death bed पे था bishop. Now we know what a bishop is and who a bishop is exactly. So वो मरने वाला था अपने death bed पर, लेकिन उसको मरने से पहले materialism चाहिए था. उसके अंदर fear भी था मरने का, regret भी था और jealousy भी थी दूसरों को देखकर. जैसे jealousy is obviously because of somebody, हम किसी को देख के jealous होते हैं, तो उसको भी अपनी डेथ बेड पे जाने से पहले एक जेलसी थी. दैट वाज हिज टॉम्ब, कि वो किसी और से ज़्यादा सुंदर होना चाहिए. वील सी हु ही वाज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट. हम क्या देखते हैं कि बिशप अपने डेथ बेड पे जाने टाइम बल्कि होप करने की बजाय कि उसकी लाइफ उसको पता है कि अब उसका टाइम आ गया, दैट ही हैज़ टू गो, वो खुश होने की बजाय, थैंकफुल होने की बजाय कि अभी तक उसने जो भी डिवोट किया, जो भी उसने गॉड के लिए किया और उसके बदले उसको लाइफ में जो भी अचीव हुआ, गॉड ने उसको कुछ भी दिया, बिकॉज ही वॉज सर्विंग गॉड, बिकॉज ही वॉज सर्विंग फॉर द चर्च, बिकॉज ही वॉज सर्विंग फॉर क्रिश्चियन पीपल. उसको वो खुश होने की बजाय वो जेलस, उसके अंदर इतनी जेलसी है, ऑल्दो उसके अंदर मरने का डर भी है, बट वी सी उससे ज़्यादा जेलसी है. वो थैंकफुल होने की बजाय कि उसने इतना सब कुछ करा है गॉड के लिए, बदले में उसे इतना सब कुछ मिला, उसे लाइफ में जाने से पहले भी और चीज़ें चाहिए थी. वी नो दैट, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी से सुना होगा कि अब हम अपनी लाइफ में हमने पोता पोती देख लिए. वी हैव सीन आवर चिल्ड्रन गेटिंग मैरिड, बिकमिंग पेरेंट्स. जब उनके बच्चे पेरेंट्स बनते हैं उनके पास सारी खुशियाँ होती हैं, उनको पता है उन्होंने अपनी सारी वेल्थ प्रॉपर्टी अपने साथ नहीं लेके जानी. वो क्या कहते हैं, बस हमें पीस चाहिए, हमें मरने से पहले शांति चाहिए, हम हेल में नहीं जाना चाहते, वी वांट टू गो टू हेवन. तो हमारा बिशप इस पोइट्री में क्या चाहता है कि उसको मरने से पहले भी बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिसीज. मैंने सारे आर्टिसी एक्चुअली मैंने सारी पोएम इसमें कवर नहीं की हैं. जो इम्पॉर्टेंट आर्टिसीज एग्ज़ाम में रेकरिंग है सिर्फ वही कवर किया है. सो लेट्स स्टार्ट इट. Nephews, sons mine, ah God, I know not well. She, men would have to be your mother once. Old Gandalf envied me, so fair she was. So now we see that a fictional bishop lies on his deathbed.
ही ऑर्डर्स फॉर अ टॉम्ब। अब हम क्या देखते हैं कि एक बिशप है, वो अपने डेथ बेड पर है, लेकिन वो मरने से पहले, अपने जाने से पहले वो चाहता है कि उसको बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए। उसको एक बेटर टॉम्ब चाहिए, उसको चाहिए कि जिस टॉम्ब में वो रेस्ट करे वो इतना सुंदर हो, इतना ब्यूटीफुल हो, उसके अंदर इतनी सारी डायमंड्स और ये सब चीज़ें रखी हो, क्योंकि वो उसका टॉम वो चाहता है कि ही डिज़ायर्स टू आउटशाइन हिज प्रेडिसेसर गैंडोल्फ। ना ओल्ड गैंडोल्फ उसका एक प्रेडिसेसर है जिसका टॉम बहुत सुंदर है, उसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स, दूसरी कंट्रीज़ के जेम्स लगे हैं। व्हेन ही डाइड तो उसको चर्च के पीपल ने इतना सुंदर टॉम बना के दिया था, तो वो अब अपने नेफ्यूज़ और अपने यंगर प्रीस्ट को ऑर्डर करता है कि उसका टॉम उससे भी सुंदर होना चाहिए। He wanted to defeat Gandalf on who is having a better Tom। वो बंदा जो ओल्ड गैंडोल्फ है, उसका इतना सुंदर टॉम है, वो चाहता है कि उसका टॉम उससे भी सुंदर हो, कि दुनिया उसको याद करे। He thinks this his resting place should be much better than that of Gandalf, कि उसकी resting place गैंडोल्फ से भी सुंदर होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि हमारी पोएम एक ड्रामेटिक सेटिंग से बिगन होती है। हमारा जो नरेटर है वो एक फिक्शनल क्रिएटर है, मतलब उसने एक बिशप को यूज़ किया है अपनी स्टोरी बताने के लिए। सेंट प्रैग्स चर्च जो है एक एक्चुअल प्लेस है, वो अभी भी है रोम में, सेंट प्रैग्स चर्च के नाम से एक प्लेस है। सो दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन दैट प्लेस। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे बिशप की तो भाई डिमांड्स ही बढ़ी जा रही हैं। अब वो कहता है कि उसे सेंट प्रैग्स चर्च जो रोम में है, वो कहता है कि मेरी रेस्टिंग प्लेस वहाँ होनी चाहिए, मुझे वहाँ लेके जाओ, आई वॉन्ट टू डाई देयर। समवन नेम गैंडोल्फ ही सेज दैट एक गैंडोल्फ, ही वॉज ऑल्सो अ बिशप, उसने उसको ट्रिक कराए, उसने उसको पागल बनाया और उसने वहाँ रोम के सेंट प्रैग्स चर्च में अपना डेथ बेड बना लिया है। ही स्टिल कंसर्न्ड अबाउट वेयर हील एंड अप। उसको अभी भी दिमाग में क्या है कि इतनी टेंशन है कि मेरे को गैंडोल्फ से अच्छी जगह लेकर चलो, मुझे वहीं जाना है, लेकिन उससे अच्छा मेरा टॉम्ब उससे सुंदर होना चाहिए। वो डिस्क्राइब करता है कि मेरे को हाई क्वालिटी ऑफ स्टोन्स चाहिए, मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर मार्बल्स चाहिए, क्योंकि एक टॉम्ब को बनाने में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। सो स्टोन्स विल बी यूज्ड, मार्बल्स विल बी यूज्ड। तो वो बोलता है कि जाओ दूसरी कंट्री से सबसे महंगे स्टोन्स और मार्बल्स इकट्ठे लेकर के आओ। वो बोलता है कि गैंडोल्फ को इतना मैं ही एक्चुअली वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से कि मुझे गैंडोल्फ को डिफीट करना है, नॉट इन वॉर बट उससे सुंदर टॉम्ब बनाने में। सो ही सेज गैंडोल्फ वॉज जेलस ऑफ हिम। अब वो जेलस तो वो उससे खुद है, लेकिन वो बोलता है कि वो गैंडोल्फ जो था वो मुझसे जेलस है, बिकॉज उसकी बिलवड इतनी सुंदर और फेयर थी। नाउ सी ही स्टार्टेड विद क्रिएटिंग अ टॉम्ब। उसके बाद वो बोलता है स्टोन्स और मार्बल्स लेके आओ, और जबकि वी सी कि द बिशप is exactly jealous of Gandalf, but then he says Gandalf मुझसे इसलिए jealous था और उसने अपना इतना सुंदर टॉम बनाया क्योंकि जो मेरी beloved थी, जो उसका प्यार था, वो बहुत सुंदर थी, बहुत फेयर थी, बट गैंडोल्फ उससे चिढ़ता था, इसलिए गैंडोल्फ had made such a beautiful tomb। Let the blue lump poise between my knees, like God the Father's globe on both hands। Now let's see. The bishop on his deathbed is still thinking about the tomb that will be created after his death। अभी तक वो सोच रहा है कि कैसा डेथ बेड बनेगा। अभी वो मरने वाला है। हम जब मरने वाले होंगे ना, तो हम ऑब्वियसली सोचेंगे कि हमें पेन ना हो, हमारे एंसेस्टर्स जहाँ पर हैं हम वहाँ जाएं, या फिर कोई हमारी फैमिली में परेशान ना हो, हम अपने बिलवड वंस को ज़्यादा रुलाएं ना। लेकिन हमारा बिशप क्या चाहता है कि जहाँ उसका टॉम्ब डिग हो, वो जगह भी रोम में होनी चाहिए, उसके अंदर सुंदर सुंदर स्टोन्स और मार्बल्स होने चाहिए। फर्दर वो मांग करता है, नाउ वी सी एक लपीज़ लजूली एक स्टोन होता है, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली स्टोन। वो अपने नेफ्यूज़ और यंगर प्रीस्ट को बोलता है कि मुझे वो स्टोन ला कर दो, मुझे वो स्टोन चाहिए, क्योंकि वो स्टोन इतना महंगा है। मैं गैंडोल्फ को उस बात से वो जेलस होगा कि मेरे डेथ बेड में, मेरे टॉम्ब में इतना कॉस्टली स्टोन, इतना
एंड दैट स्टोन इज़ सो ब्यूटिफुल। तो वो बोलता है कि मुझे वो स्टोन ला करके दो। ही सेज व्हेन आई डाई इंसर्ट द स्टोन बिटवीन माई लेग्स, मतलब मैं अपनी लेग्स के बीच में वो स्टोन दैट इज़ लपीज़ लजूली स्टोन को लेके अपने साथ जाना चाहता हूँ। वो एक्चुअली अपने आप को गॉड से कंपेयर कर रहा है। वाई? बिकॉज हम भगवान को कुछ भी देने से पहले सोचते नहीं है कि ये कितना महंगा है या क्या है। वो बोलता है कि मुझे वो स्टोन ला के दो। ही इज़ एक्चुअली कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू दैट ऑफ गॉड। And have I not seen Prague's ears to pray, horses for ye, and brown Greek manuscripts, and mistress with great smooth marbly limbs? अब हम देखते हैं लाइन्स में क्या बोलते हैं। द बिशप गेट्स एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने सन्स से, अपने नेफ्यूज़ से, अपने यंगर प्रीस्ट से, क्योंकि जब वो उनसे आर्ग्यू करते हैं तो वो सीरियस हो जाता है। ही टेल्स देम दैट इफ़ दे मीट हिज डिमांड्स ही विल गेट सेंट प्रैग्स to send them gifts like horses and rare manuscripts and good looking mistress. Now देखो, अब वो उनको लालच देता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए मेरी सारी विशेस पूरी करोगे, मेरा सुंदर टॉम बनाओगे, मेरे को लपीज़ लजूली स्टोन ला कर दोगे, मुझे स्टोन्स एंड ब्यूटीफुल मार्बल्स ला के दोगे जो इतने कॉस्टली होते हैं, ताकि वो गैंडोल्फ को जेलस करा सके, वो उनको रिश्वत देने की बात करता है। वो बोलता है जब मैं मर जाऊंगा ना तो मैं सेंट फ्रैग्स चर्च के उनको गॉड को बोलूँगा कि आप लोगों को ना सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दें। वो मेंशन करता है कि सुंदर हॉर्सेस दें, मैनुस्क्रिप्ट्स दें जो बहुत रेयरली मिलती होंगी। और वो आगे देखो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर उनको मिस्ट्रेस गिफ्ट करने को भी बोलूँगा। और वो बोलता है अगर तुमको ये सब चाहिए तो तुमको जो मैं चाहता हूँ वो मुझे देना पड़ेगा, और मैं जो चाहता हूँ कि मैं गैंडोल्फ को जेलस करना चाहता हूँ तो मेरे को उससे सुंदर टॉम बना कर दो। नाउ आर यू लुकिंग एट द डिमांड्स ऑफ द बिशॉप? हम जब मरने वाले होंगे हमें कुछ नहीं चाहिए होगा एक्सेप्ट पीस, लेकिन इसको तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए। दैट आई मे वॉच at leisure if he lures old Gandalf at me from his onion stone, as till he envied me so fair she was. अब वो क्या बोलता है कि अपने यंगर मैन को सजेस्ट करता है, वी नो दैट ही इज़ टू सेल्फ कॉन्शियस टू नाउ गिव ऑर्डर्स वाइल नो लॉन्गर हैविंग सच फर्म अथॉरिटी। अब हमें पता है कि वो मरने वाला है, वो अपने डेथ बेड पर है। अब उसके अंदर इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने यंगर्स को डिमांड कर सके या ऑर्डर कर सके कि तुम मेरे लिए ये ला के दो, वो ला के दो, बट ही इज़ डूइंग दैट। हाउ कैन अ बिशप थिंक ऑफ मटीरियलिज्म वाइल डाइंग? मतलब हम कैसे सोच सकते हैं कि एक बिशप को मरने से पहले भी इतनी मटीरियलिस्टिक लाइफ चाहिए है। वो चाहता है कि लपीज़ लजूली स्टोन आए, मेरे लिए सुंदर सुंदर स्टोन्स मार्बल्स से मेरा टॉम बने। हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं दैट ही इज़ वेरी सेल्फ कॉन्शियस। उसको सिर्फ अब वो मरने के टाइम भी अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने टॉम को डेकोरेट करने की सोच रहा है, डिमांडिंग फॉर लपीज़ लजूली स्टोन जैसे कोई भगवान है। व्हेन वी आर डाइंग हम बोलते हैं हमें शांति चाहिए, हम बिल्कुल परेशान ना हो, हम पेन से ना जाएं, बट इसे तो चाहिए कि मुझे किसी को जेलस कराना है। वो क्योंकि वो बंदा मुझसे जेलस था बिकॉज हिज मिस्ट्रेस वॉज सो ब्यूटिफुल एंड फेयर इन कलर। शायद हम ये जज कर सकते हैं कि जो ओल्ड गैंडोल्फ की मिस्ट्रेस थी वो इतनी सुंदर नहीं थी। हम ये चीज़ देखते हैं कि उसको जाने से पहले लग्जरियस लाइफ चाहिए, इतने सारे ऑर्नामेंट्स डेकोरेशंस चाहिए। हम मरेंगे तो हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, आर फैमिली, आर वेल्थ, आर मनी, एवरीथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन उस हमारे बिशप को हर चीज़ को अपने साथ लेके जाना है क्योंकि वो जेलस है। ऑल्दो उसके अंदर फियर है दैट ही विल नाउ डाई, एवरीथिंग, हिज फैमिली, चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन उसको उससे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ध्यान है। वो अपने साथ सब कुछ स्टोन्स, इतना सुंदर टॉम्ब, इतने सारे पैसे लगा करके वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहता है जस्ट टू मेक ओल्ड गैंडोल्फ जेलस, और वो उसको जेलस कराना चाहता है जो अब इस दुनिया में है भी नहीं। मूविंग ऑन,
So, through this poem, we see how beautifully Robert Browning has used the technique of irony, in which he displays luxurious life, ornaments, and decorations which a bishop actually wants before dying. तो हम ये भी देखते हैं कि मरने से पहले ही रिक्वेस्ट्स फॉर एक्चुअली वो रिक्वेस्ट ही करता है, उसके मन में फियर है दैट ही इज़ डाइंग, लेकिन उसके अंदर जेलसी भी है दूसरे किसी को देख के. सो ही आस्क्स फॉर एन एक्सेसिव शोवी टॉम्ब, जिसको वो जाए तो दुनिया याद करे कि हाँ उस बिशप का इतना ब्यूटीफुल की मिस्ट्री. So that's it for today's video. I hope you all have understood the text very clearly and easily. To join our online classes, please email us at megha09academy@gmail.com, or you can directly call or WhatsApp us on the given number. Thank you, and please don't forget to subscribe to my channel.